1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 कोरिंथियंस 2 चैप्टर, Psalms 107, 108 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय, भजन संहिता 107 और 108 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, आबा फादर, ये वचन हमारे जीवन के अंदर, हमारे कमज़ोर अवस्था में फिट एंड फिक्स करने के लिए पवित्र आत्मा हम में काम करे। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमको नमक कहता है, ज्योति कहता है, तू हमको कहता है चट्टान पर बंधा हुआ घर, तू हमको कहता है सुनने से और सुनना वचन से विश्वास आता है। अबा फादर, ये सब कुछ तू ही ने कहा है। तू कहता है वचन जीवन की रोटी है। तू कहता है ये वचन धर्मियों के लिए विश्वास को जगाएगा और धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। और तू ये भी कहता है मनुष्य केवल वचन से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा जीवित रहेगा। तू कहता है वचन तलवार है। तू कहता है वचन सिद्धता की ओर हमको लेकर जाता है। तू कहता है वचन पानी है, जो शुद्ध जल है, जो शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हृदय के अंदर की मलिनता को हटा देता है, विवेक शुद्ध करता है। तेरा वचन इतना सब कुछ करता है। हमारे अंदर तेरे वचन का अनुभव आने के लिए आज रास्ता दे खुदा। नासरी यीशु के नाम से पिता परमेश्वर विनती करते हैं, वी वेलकम योर होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आज तेरी सहायता हमें दे। वचन का ये सारा अनुभव हमारे अंदर खुलने का रास्ता तैयार कर। हम विनती करते हैं, नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर, 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हाउ Paul preached the gospel, which is God's wise counsel for men's salvation. First verse से पढ़ेंगे। And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye hath not seen, nor ear
heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of a man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. पहले कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय, हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। क्रूसित मसीह के विषय संदेश। पहले वचन से, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान, फिर भी 6 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है।
सैम्स 107 108 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। 107 Psalms 107 The psalmist exhorts to praise God etc. First verse पढ़ेंगे। Oh give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered them out of the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses, and he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and condemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he hath broken the gates of brass and cut the bars of iron in sunder. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he saveth them out of their distresses. He sent his word and healed them, and delivered them from their destructions. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing. They that go down to the sea in ships, that do business in great waters, this see the works of the Lord, and his wonders in the deep. For he commanded and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. They mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad because they be quiet. So he bringeth them unto their desired haven. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders. He turneth rivers into a wilderness, and the waters springs into dry ground, a fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein. He turneth the wildernesses into a standing water.
and dry ground into water springs, and there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation, and sow the fields and plant vineyards, which may yield fruits of increase. He blesseth them also, so that they are multiplied greatly, and suffereth not their cattle to decrease. Again they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow. He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way. Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock. The righteous shall see it and rejoice, and all iniquity shall stop her mouth. Whoso is wise and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord. Psalm 108. David prays for God's help according to his promise. A song or psalm of David. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. O God, my heart is fixed. I will sing and give praise even with my glory. Awake, psaltery and harp. I myself will awake early. I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises unto thee among the nations. For thy mercy is great above the heavens, and thy truth reacheth unto the clouds. Be thou exalted, O God, above the heavens, and thy glory above all the earth, that thy beloved may be delivered. Save with thy right hand and answer me. God hath spoken in his holiness. I will rejoice. I will divide Shechem and mete out the valley of Succoth. Gilead is mine, Manasseh is mine. Ephraim also is the strength of mine head. Judah is my lawgiver. Moab is my washpot. Over Edom will I cast out my shoe. Over Philistia will I triumph. Who will bring me into the strong city? Who will lead me into Edom? Wilt not thou, O God, who hast cast us off? And wilt not thou, O God, go forth with our hosts? Give us help from trouble, for vain is the help of man. Through God we shall do valiantly, for he it is that shall tread down our enemies. यही वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. भजन संहिता 107 और 108 अध्याय. 107 अध्याय से पढ़ेंगे. पांचवा भाग भजन 107 से 150. संकट से छुटकारा. 107 अध्याय पहले वचन से. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है. यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है. वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, और कोई बसा हुआ नगर न पाया. भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए. तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे. लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें.
क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किए। मूढ़ अपनी कुचाल और धर्म और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। और एक बार पढ़ेंगे। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। 18 वचन आगे पढ़ते जाएंगे। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। आमीन। थैंक यू जीसस। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहे और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है। यह वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा ले। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वह हकीमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। शत्रुओं के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना।
भजन गीत दाऊद का भजन, पहले वचन से पढ़ेंगे। 108 भजन संहिता, पहले वचन से। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और अप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोवाब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंद देगा। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 17 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स। 1 सैमुएल 2 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 वचन से 10 वचन। पहला शमूएल 2 अध्याय। हम 2 साल का 2 ईयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले में व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे और ख़ास तरीके से परमेश्वर की शांति और अनुग्रह हमें प्राप्त होगा, परमेश्वर के मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। वो हमने नोट्स में लिख लेना है, उसके अनुसार हमने अपने जीवन को चलना है। ऐसा चलते हुए हम जब जाएंगे 2 साल के अंत में, हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पाए हुए और शांति और अनुग्रह में बढ़ते हुए हम पूरी तरह से निखर कर आएंगे, परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के कामों में उपयोग करता है। परिपक्व होने के कारण हमारे अंदर की परिपक्वता उसे प्रसन्न करती है। हमने वैसा होना है और ऐसा होने के लिए हमको परमेश्वर ने अनुग्रह भी दिया है। हमने निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन हमारे जहन में रहने दे खुदा, हमारी सोचों में रहने दे खुदा, हमारे आत्मा प्राण शरीर में पिता परमेश्वर हमारे अंदर ये संपूर्णता का काम करने दे। हमारे अंदर के हर एक पिता, जो भी जगह जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत है फिट एंड फिक्स करने की, उन सभी जगहों में ये वचन हमको पवित्र आत्मा ले लेकर फिट एंड फिक्स में बदलता जाए। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।